की प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में। I really feel blessed to share my satsang. Yesterday on Purnamashi, I got a dream in the morning where I saw Guruji in the pink chola and telling me, "तू मेरे कोल बैठेगी." When I asked, मैं कहाँ बैठूंगी? Thank you, Gurupa, for helping me sharing this satsang. Finally, day before yesterday also I got a message flashing कि गल तेनू मेरा इशारे समझ नहीं आंदे। तो एक जाड़ पड़ी गुरुजी से और मुझे लगा यही टाइम है, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऑल्सो व्हेन आई गॉट द हिंट्स आई मिस्ड शेयरिंग सत्संग. देन I thought maybe this is another time which Guruji is telling me that yes, you have to share your satsang with everyone. और बार बार मैसेज आ रहे थे कि एक वड्डे सत्संग दी तैयारी कर. So I was not sure whether this was the right time I need to do it, but I think Guruji wanted to share this with you all. सत्संग जैसे गुरुजी कहते हैं, सत्संग सुनान वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला. तो आज साथ संगत जी मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करती हूँ. थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी. आई गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी इन 2014. गुरुजी से हमारा कनेक्शन कब से है, कितने सालों से है, कितने जन्मों से हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं. वो ही जानो जान हैं. जे तू ना फड़दा साडी बां असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलती थां असा रुल जाना सी. तो मेरा भी कुछ सत्संग, एक ब्यूटीफुल सत्संग है इस लाइफ जर्नी में गुरुजी के साथ. गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, वो सदैव आपके अंग संग हैं. ही इज showering his immense blessings on all of us always. It is on us how we receive it, with complete faith and a complete surrender in him. No questions, no ifs, no buts, but just walk holding his hand with full trust in him and his timings, and the ardent faith in him will help you sail through. My whole life is a satsang. Every day, every minute, I would say Guruji is guiding me, guiding all of us, I would say, in this journey called life. Guruji मेरी बाँ सदैव ही पकड़े रखना. Thank you Gurupa. Thank you so much. I always used to pray to Lord Shiva. Guruji blessed me throughout my odds, my tough times. 2014 is the year I remember when I first saw Guruji's Swaroop in some newspapers piles. Thought, who is this Guruji? I haven't heard about him, never ever seen him before. That was the first time I remembered and saw his Swaroop. Then I met my school friend when I was in Gurgaon. When I shifted from Bangalore to Gurgaon, I was in Vatika. I was staying in Vatika, and then there was a get together from one of my friends, very close friend. There another friend visited, and she was a complete devotee of Guruji, and I was not well because I had Bell's palsy when I was just 23, and I used to be very upset and conscious about my face all the time. And then she told me, Charu, you surrender to Guruji. Guruji will guide you. So that might be Guruji's calling for me. And after shifting from Bangalore,
We stayed in Bangalore for 10 years, and after shifting from Bangalore, me and my husband started a business where we launched our own brand, and we both used to travel a lot. And wherever we used to go, we used to see Guruji Swaroop many times. So we were like, ये कौन से गुरुजी हैं? It used to come in our minds always. It came in our mind that okay, मैं घर जाके वो स्वरूप चेक करती हूँ. I started to look for the स्वरूप in those piles, newspapers again. I couldn't find it. So वो गुरुजी का एक तरीका था मुझे ब्लेस करने का. गुरुजी ने अपना स्वरूप दर्शन दिए. So गुरुजी ने कनेक्ट करना था. Thank you गुरुजी, शुक्राना गुरुपा. So this is how our journey started. We thought, okay, let's go to Chhatarpur Bade Mandir. Me and my uncle's journey with Guruji started, and he connected us. We felt very, very nice in the mandir, very peaceful, felt bliss, enjoyed shabads, langar prasad, and we were so happy to see the sevadars doing the seva with their wholeheartedly. Gestures were so pleasing and so nice to see. Before shifting from Bangalore, my uncle was in a very, very good job and a very senior most position as Vice President Marketing. We were very happy. Everything was going fine. We were very, very happy and contented with life. And maybe there was one thought which was like I wanted to come back to my hometown. I used to tell my husband that it's been many years, let's go back to Delhi. It's been a lot now. Let's go back. While we were in Bangalore, my uncle's very close friend used to visit us many times and told my uncle to start a business with him in partnership, doing partnership with him. And that was actually one option we got while we were thinking we should move, and we took a call and a very hard, bold step to come to Delhi, leaving everything and then moving here. So we thought, okay, let's do the partnership business, and maybe that's another option we have in our hand. So our Guruji ने बहुत कुछ शायद सिखाना था हमें इस दौरान, इस जन्म में, इस लाइफ में, इस जर्नी में. तो that friend used to visit us very, very frequently in Bangalore because he knew that my uncle had ESOPs and everything with him, and maybe he wanted to use that money in his business, and he called on him. And then my uncle said, okay, before joining the partnership, before getting into any legal things, let's go and check his balance sheets. That struck him in his mind, and then he just checked on the balance sheets. It was all loss. That was a very hard-earned money, and by Guruji's grace, we were saved. We thought if we would have put all money there, it would have gone in vain, and everything money would have been wasted. So जय गुरुजी ने ब्लेस करना था, हमें संभालना था, और भी कहीं किसी गलती में गिरने से पहले तो गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ी. And then we, by Guruji's grace, we got into our own venture where we launched our own brand, और वो brand शुरू किया हमने. Everything was going well. Everything was just perfect. It was going on, and for some time it went well. But और कुछ family में भी कुछ problems होने लगी. Maybe people were not very happy to see our success, and then they tried to do something on us, and we were very disheartened, and that this thing can also happen with us in the family. And it is quite surprising and shocking for us also. And
we were very hassled on this thing, but गुरुजी ने हमें संभालना था, गुरुजी ने हमें बचाना था. तो हम उस टाइम एक रेंट वाले घर पे रहते थे गुड़गांव में, वाटिका में. गुरुजी ने अपनी शरण में लिया और हमें जिस घर में हमें लगा कि कुछ करवाने की कोशिश की गई है, गुरुजी ने हमें उस घर से निकाल दिया. बिकॉज आई वॉज वेरी स्केर्ड एट दैट टाइम, और मुझे हिंट्स भी थे, बट गुरुजी ने बचा लिया. थैंक यू गुरुजी. There were many hiccups in our business too at that time. कुछ और losses भी होने लग गए थे. Things were not going good then at that time again. बस सब खराब ही होने लगा. Loss बहुत हुआ. We lost a lot of money. लोग भी सही नहीं मिले during that business. My uncle was always in service, so he was more happy with very clean and neat environment and corporate culture, and then he had to get into this business, and we saw people with the bad intentions, and everybody want to make money everywhere. So हमने बहुत loss भी हुआ हमें, and so we were very upset. But during that time गुरुजी ने अपनी शरण में हमें लिया, और उस टाइम में भी उन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी, हमें संभाला, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. मीनवाइल जब हम अपने बैंगलोर से शिफ्ट हुए तो हमें अपने घर का पोजेशन भी मिलना था. वो भी लिटिगेशन में फंस गया, बिकॉज दैट वाज द प्रॉमिस मेड बाय DLF फॉर आवर ओन प्रॉपर्टी विच दे हैड टू हैंड ओवर. And but then that was a farmer's land, and it got into litigation. वो project फिर बना ही नहीं. And with Guruji's grace again, Guruji's blessings again, गुरुजी ने एक DLF की तरफ से वो swap की option हमें flash हुई, और हम कनॉट प्लेस में DLF के ऑफिस में गए, और गुरुजी ने हमें 26th फ्लोर पे DLF में घर दिलवा दिया, ऊपर, सबसे ऊपर, द टॉप मोस्ट फ्लोर. वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी. जब we thought finally we will be saving some money coming to our own house, and because things were not so good at that time, so obviously that helped a bit. And जब मैं और मेरा बेटा अपने नए घर देखने आए तो on the way we met with an accident. Luckily again गुरुजी तो अंग संग है. गुरुजी, luckily we both were safe, and the vehicle which was coming from the wrong side, it hit on the angle that our car spun like anything. It was like spinning in circles, and after a few kilometers we just stopped, and it was Guruji only who saved us at that time. There was no bruise, nothing on us, and me and my son were perfectly fine. There was an issue with the vehicle, but then thanks God, thank you Guruji for saving us again. There was a Creta behind us which maintained a distance and stopped, but गुरुजी वो स्टेयरिंग व्हील संभलवाते रहे मैं कि पेवमेंट पे ना लगे, फिर डिवाइडर पे ना लगे. इट वाज लाइक अ वीडियो गेम विच वाज जस्ट प्लेइंग ऑन. एंड मेरे बेटा मुझे कहता, मामा मुझसे स्टेयरिंग नहीं संभल रहा, मुझसे ब्रेक नहीं लग रही. बट देन गुरुजी ने अपना संभाला सब, और वो ब्रेक, मैंने बोला उसको कि ब्रेक लगाओ, तो देन ही पुट द ब्रेक, एंड लकीली वी वर सेव्ड. That was Guruji's kripa on all of us. Thank you, Guruji. We got our own house finally, and we moved on there, and then we moved to our own house. And we were at that time we just thought of winding up our business, because we found a lot of cheating there and people into wrong things, and then we said, okay, we can't do it now here. And he wanted to move back, my uncle wanted to move back to the corporate world again, and
we were saying कि गुरुजी ठीक है अब आप ही देखो. I very clearly remember when I was in that house, the first dream which I saw was when Guruji gave me his darshan, that is in his black chola, where he's turning the other side, and I could see only his head, and I couldn't see his face, but saw him standing in his black chola, facing the other side. I was very scared. और गुरुजी ने एक लेडी को, बड़े गुस्से में गुरुजी ने एक लेडी को मुंह में दबा के उसको निकाला यहाँ से और कहा तूने बहुत परेशान कर रखा है मेरी बेटी नो, जा इथों तो जा. मुझे ये था मेरा पहला ड्रीम जो उस घर में मुझे गुरुजी ने अपना दर्शन दिया. मुझे डाउट तो था कि कुछ ना कुछ कहीं है प्रॉब्लम्स. But Gurupa, thank you for blessing us and saving us all again. Thank you, Guruji. Second time when I was in Ambience, I was shopping and I was in Marks and Spencer. At that time, there was a person who just randomly somebody appeared in front of me and with such a bright shine look on his face, that sparkling face is still in my eyes, and I cannot remember that face. I cannot forget that face. It was so bright, so sparkling face with round eyes, big round eyes. He just came across and stood and whispered to me that you are very lucky. For 2 minutes I was shocked and I said, who's this person? I've not seen him ever. Who's this person following me? I was scared. I called up my uncle that somebody is following me. I was so scared that I didn't step out of Marks and Spencer for some time, and then when I was comfortable, I thought if somebody is following me, let me see if he's around or something. Or maybe when I came out of Marks and Spencer, then again my thoughts were there only throughout, and I was looking for that face, but I couldn't find it at all. बट वो भी कोई गुरुजी ने कुछ ब्लेसिंग्स थी मुझे. आज मैं इतने दिन के बाद सोचती हूँ तो वो भी गुरुजी ने कुछ ब्लेसिंग्स ही दी होंगी. तो उस टाइम में मैं घर आ गई एंड things were still in limbo. We were not very comfortable. Many years passed. We kept visiting Bade Mandir without any questions, without any ifs and buts, and it's Guruji's meher. बस हम चलते रहे. My uncle joined back his job in Mumbai, and I was with my kids in Gurgaon, and it was their 12th standard, and you are immobile during your boards and all. So I took a call of staying back in Delhi and in Gurgaon, and he moved to Mumbai, and obviously I was not very happy because he had to go back and join his job there, and he'll be alone there, and maybe that was another phase of life where Guruji kept me in his sharan and gave me strength to stay. And then maybe another way of blessing my uncle in his job, and by his grace my uncle also. Then afterwards I was like unhappy. और गुरुजी तो सबकी सुनते हैं, गुरुजी तो जानो जान हैं, वो तो हर पुकार, हर इच्छा अपने भगत की, अपनी प्यारी संगत की सुनते हैं. और उन्होंने मेरी भी सुनी गुरुजी ने, और असीम को, मेरे अंकल को, उन्होंने दिल्ली में जॉब उनको ऑफर हुई. And during this tough times, it was like always one or the other option was always there with my uncle, and I was, though there were tense moments and not very happy ones, and टेंशन तो रहती थी उस टाइम में भी, बट देन गुरुजी ने वो चिंता से निकाल के अपने चिंतन में रखा, एंड गुरुजी ने कृपा बनाई और हमें शक्ति दी और हिम्मत दी. हिम्मत के साथ अपने चरणों से जोड़ कर रखा और प्यार किया, बहुत प्यार किया. अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना. धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी. अब 2021 में भी, जो 2020 में जब लॉकडाउन के बाद बड़े मंदिर ओपन हुआ, तो मेरा बहुत मन था कि गुरुजी
मैं उसके बाद हमें यहाँ गुड़गांव में 10 years ऑलमोस्ट हो चुके हैं. इट्स लाइक मोर देन 10 years नाउ. एंड संगत जी, गुरु जी blessed my uncle again with a wonderful opportunity again in Bangalore, and we had to move to Bangalore finally. This is again a beautiful blessings. गुरु जी ने अंकल को उनकी मनपसंद opportunity उनके लिए दी, and we were blessed, which we are so happy. We whole family is so excited about it, and we moved to Bangalore. गुरुजी ने बहुत कृपा करी उसमें हमें. लॉकडाउन के बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे बैंगलोर जाना है, तो मैंने गुरुजी को कहना शुरू कर दिया, गुरुजी मैं बड़े मंदिर कैसे आऊँगी गुरुजी, मेरे को लंगर प्रसाद कैसे, आपकी ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी, मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे आना है. तो दिस थॉट वाज जस्ट रनिंग इन माय माइंड बिफोर आई मूव टू बैंगलोर अगेन. एंड देन इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ग्रेस ऑफ गुरुजी दैट every week I used to get the e-pass, and Sangat ji, you won't believe, every week I was having a beautiful blessed darshan of Guruji, और Guruji मुझे bless करना था. गुरुजी ने अपने तरीके से, गुरुजी अपनी संगत को अपने तरीके से, अपने टाइम से हर एक को ब्लेस करते हैं. गुरुजी की इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं जिनका व्याख्यान मैं कर ही नहीं सकती, मैं पूरी लाइफ नहीं कर सकती. मेरी दिन, मेरी सुबह, मेरी रात, मेरा सब कुछ गुरुजी हैं. गुरुजी के बगैर मैं एक कदम नहीं चल सकती. गुरुजी मेरा हमेशा हाथ थामे रखना. गुरुजी अपनी कृपा सारी संगत पे, सब पे हमेशा सदैव बनाए रखना गुरुजी. तो गुरुजी ने मुझे इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स दी, मेरे को बुलाया बड़े मंदिर, और ये एक मेरा ब्यूटीफुल जर्नी थी गुरुजी के साथ. बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं. गुरुजी तो डेली सत्संग बनाते हैं और हर एक की पुकार सुनते हैं. गुरुजी तो कहते हैं मेरे स्वरूप नाल तुसी गला करो, तुसी डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ. और संगत जी, गुरुजी हर एक की सुनते हैं, हर छोटी से छोटी आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं. गुरुजी को तो हमसे पहले पता होता है कि हमें क्या चाहिए. गुरुजी की तो इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं. तो गुरुजी प्लीज कीप गाइडिंग अस ऑलवेज. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि हम गुरुजी के शरण चरण में हैं. और जैसे ही ये मेरा सत्संग कल मैंने राइट किया, तो सत्संग के बाद एकदम रविंद्र जी का भजन चल पड़ा. मैं तेरा जी, मेरे गुरुवर मैं तेरा जी, कई जन्मों के बाद हुआ है आज सवेरा जी. It was so beautiful when I saw that, and it just auto played, and I was like, गुरुजी थैंक यू. मुझे जो डाउट्स थे कि मुझे शेयर करना है, अभी कैसे करना है, कैसे करूँगी, आप ही करवाओ, आप ही लिखाओ. तो गुरुजी ने अपने साथ बैठ के मेरे को ये सत्संग शेयर करवाया साथ संगत के साथ. और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. गुरुजी ने न्यू ईयर बैंगलोर में हमें न्यू घर में सेलिब्रेट करवाया. हम जिस घर में शिफ्ट हुए immediately Bangalore आके, तो that was on rent and the number was D802. That was 8th floor, 82 number. So बच्चों को वो घर पसंद नहीं आया, and they immediately, it was like जो होना था, जैसे होना है, it was like गुरुजी ने 29th को दूसरे घर की डील भी फाइनल कर दी. वो घर हमें बिल्कुल न्यू घर हमें गुरुजी ने ब्लेस किया. और वो उसका नंबर भी यही था, 11th फ्लोर, 82 नंबर. और यहाँ आने से पहले गुरुजी की इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स थी कि जब मैं दिल्ली से बैंगलोर के लिए चली, तो वहाँ मैंने उस दिन के लिए एक दिन पहले मैंने ई पास जनरेट किया हुआ था कि मुझे जाना है, बट शिफ्टिंग की वजह से मैं जा नहीं पाई. तो गुरुजी आपकी पुकार कैसे सुनते हैं संगत जी. उस दिन एक आंटी के थ्रू मेरा कनेक्शन हुआ, और वो अंकल आए मेरे लिए बड़े मंदिर का प्रसाद लेके. उन्होंने मुझे बड़े मंदिर का प्रसाद दिया, और गुरुजी के बड़ा स्वरूप भी दिया, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी बहुत सारी. और गुरुजी ने
ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी गुरुजी को पता था कि हमने उस घर में जाना है, और गुरुजी ने नए घर के लिए, न्यू ईयर के लिए वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का प्लेट पे दिया. एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी को तो सब पता है. गुरुजी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो तो गुरुपा हैं. बच्चों को भी एक और सत्संग भी है. सत्संग तो मेरे बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, अनेक हैं, और इतने हैं कि मैं गुणगान गाते गाते भी गुरुजी का कम ही रहेगा, मैं जितना भी गुरुजी की गुणगान गाऊं. बच्चों को भी थोड़ा नहीं, आई वुड से कि बहुत टाइम लगा उनको गुरुजी से कनेक्ट होने में, क्योंकि गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए व्हाट आई बिलीव इज दैट यू हैव टू फील टू बिलीव इट. एंड वो फीलिंग्स बच्चों को शुरू में इनिशियली नहीं समझ आती हैं, और बच्चों को वो लॉजिक नहीं समझ आता है. दे वांट एवरीथिंग टू बी लॉजिकली told them, and then then only they can connect. तो मेरा बहुत मन था, being a mother I always wanted to take them to Guruji's मंदिर, बड़े मंदिर, for the blessings, and it was like गुरुजी अब आप ही देखो, आप ही बुलाओ, आप ही कहो. तो one beautiful day they told me, okay mom, we will come along, but it was very hard to convince them. And then all those questions कि वहाँ कितना टाइम लगेगा, कितनी देर लगेगी, कैसे होगा, वहाँ पे क्या करना है, अंदर बैठना है और लाइन होगी. तो इट वाज लाइक गुरुजी तो सब जानते हैं. गुरुजी ने उनको इतना क्विक दर्शन दिया, इतना जल्दी से अंदर दर्शन दिया, लंगर प्रसाद का दिया. इट वाज सो इजी एंड सो कंफर्टेबल. एंड दे सेड कि मामा ये तो हम तो दोबारा भी आ सकते हैं. आई वाज लाइक जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, अदरवाइज दे वुड हैव ऑन द वे क्रिप्ड ऑल द टाइम दैट mama. So I was like गुरुजी बस गुरुजी, thank you so much गुरुजी. Another satsang now, but I can say that by grace of Guruji, my elder son is now connected to Guruji, and thank you Guruji, Anantam Shukrana Gurupa. Another satsang is my last year satsang, which I have already shared when me and my son got. I will just brief it down. My son and me was COVID positive, and then Guruji की blessings थी. गुरुजी ने हम सबको, दोनों को बिल्कुल बहुत अच्छे से ठीक कर दिया. 10th मई को मुझे डायग्नोज हुआ था, एंड आई वाज लाइक 6th डे पे आई गॉट अनईजी, और मैंने कहा गुरुजी बस अब तो मुझसे नहीं संभल रहा, आप ही देखो, मेरे से तो नहीं हो रहा. एंड देन आई लिट द जोत एंड सैट नियर गुरुजी. गुरुजी ने उसमें इतने ब्यूटीफुल दर्शन दिए, उसमें लंग्स बना दिए, और गुरुजी ने कहा कि देख अब मैंने तेरे लंग्स बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब बर्न कर दिया इन्फेक्शन, नथिंग इज देयर. सो आई वाज लाइक, मैं उसके बाद कंफर्टेबल होने लग गई. एंड व्हेन आई वेंट फॉर माय चेस्ट स्कैन, इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर, एंड दैट पर्सन ओवर देयर सेड, मैडम आपको कभी कोई कोविड भी हुआ था, लगता तो नहीं है. सो आई वाज लाइक जय गुरुजी, अगेन जय गुरुजी. तो गुरुजी ने उसमें भी ब्लेस किया बहुत ज़्यादा. और जब हमारी फाइनेंशियल टर्बुलेंस चल रही थी, तो वो गुरुजी ने ही इतनी हिम्मत दी, इतनी शांति दी, इतना, मतलब गुरुजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि ज़िंदगी कैसे होती है, लोग कैसे होते हैं, लोगों की पहचान कैसी होती है. कुछ रिश्ते जो आपके साथ हमेशा चलने हैं, वो हमेशा किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में आपके साथ रहेंगे, और जो रिश्ते आपसे दूर होते हैं तो उसमें भी आपकी भलाई है. सो थैंक यू गुरुजी फॉर द लेसन्स यू हैव टॉट अस. एंड हमारे को अपनी 5 इंद्रियों पे कंट्रोल करना सिखाया गुरुजी ने, सेल्फ रियलाइजेशन हमें सिखाया. तो गुरुजी पल पल तुझे संभाले. तो
गुरुजी ने हर पल संभाला है हमें, और during those COVID days that were also not very easy for everyone, it was a very tough and the testing times, and मैं भी बहुत परेशान हो रही थी उस टाइम में कि गुरुजी क्या मेरे में कुछ अच्छा है, क्या मैं कभी इंडिपेंडेंट हो सकूंगी, कैन आई अर्न माई ओन, कैन आई बी ऑन माई ओन थिंग्स। तो गुरुजी कुछ अच्छा है क्या, मैं कुछ शुरू करूंगी या कुछ तो अच्छा होगा। गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स दी, मुझसे पेंटिंग्स बनवाई, गुरुजी ने इतनी पेंटिंग्स बनवाई कि मैं बस कोर्सेज में एनरोल कर लेती थी और वो थ्रू आउट मैं सीखती गई। गुरुजी ने मुझसे गणेशा बनवाए, श्रीनाथ जी बनवाए, दुर्गा माता बनवाई। It was like that, it was just on and I was into one after the other thing. I was just going on. शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बिकॉज जब आप कुछ करते हो तो वो फील गुड फैक्टर गुरुजी ने मुझे फिर रियलाइज किया कि यू शुड फील गुड अबाउट इट, एंड आई वाज हैप्पी। आई वाज लाइक बस मेरे शब्द सुनती रहती थी, मेरे सारे दिन शब्द गुरबानी में चलते रहते थे, और गुरबानी सुनते सुनते मैंने बहुत पेंटिंग्स बनाई। बानी गुरु, गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे। सो दैट वाज द थॉट एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी। गुरुजी ने उसमें भी हेल्प करी, बट उसके बाद सत्संग बहुत सारे हैं, सत्संग इतने हैं कि मैं क्या मतलब बहुत सारे हैं सत्संग गुरुजी के। मेरी लेग में भी इशू था, लेफ्ट लेग इज स्टिल एन इशू बिकॉज वंस आई फेल एंड देयर इज अ जॉइंट in my knee which is not well fixed, और वो गलत जॉइन हो गई थी bone, and due to that the gap is reduced and there was a surgery which everybody suggested, but by Guruji's grace, Guruji's blessings, सत्संग गुरुजी ने बहुत सुनाए, माली आंटी का सुनाया, फिर गुरुजी ने चंदन का टीका सुनाया। So Guruji's blessing every now and then I had lot of acidity, तब मेरा वो गुरुजी ने बस चला रहे हैं, गुरुजी अपने साथ साथ, बस गुरुजी के साथ साथ चलते रहो, बस ये जर्नी तो गुरुजी के साथ ही है हमारी, और इतनी सुंदर जर्नी है। गुरुजी तो बस हाथ पकड़े रखे हैं हमारा सबका। और फिर ऐसे ही मुझे बहुत सीवियर एसिडिटी हुई, गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हुआ, एंड I was not able to eat anything. It was only COVID times only, those 2 years, that one year only, and I was not able to eat at all. So बस गुरुजी का चंदन का टीका आता था, और यही मैंने कहना, गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप देखो, टच वुड, बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी नाउ आई कैन ईट वेल, बट अभी भी हो जाती है कभी कभी, बट गुरुजी संभाल रहे हैं। ऐसे ही मेरा फ्रोजन शोल्डर का है, कोविड की वैक्सीनेशन लगाने के बाद परमानेंट मेरे लेफ्ट शोल्डर में इशू रहा, तो मेरी तो हर चीज के लिए गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप संभालो, गुरुजी आप देखो। थैंक यू गुरुजी, बस अपने साथ जोड़े रखना, आपने ही हमें अपने साथ चलाना है, अपने चरणों में रखना है, एंड इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी विद गुरुजी, एंड गुरुजी अपने चरण कमल में हमेशा हमें शरण दे रखें और हमारे सर पर सदैव अपना हाथ बनाए रखें। उन्होंने बताया कि गुरुजी उन्होंने टेबल पे लगाया, तो ये सत्संग भी गुरुजी का था। उसके बाद माय डैड रिसेंटली वाज अनवेल एंड he was in ICU and we were scared, and you know those family problems and in the blood relations of
somebody doesn't allow you to meet your parents and it is such a big pain, and then मैंने अरदास करी गुरुजी बाहर देखो गुरुजी, एंड गुरुजी ने अपने स्वरूप में मेरे डैड की शक्ल दिखी, मुझे उनकी आवाज़ लगी, देख बख्श दिया डैड तेरे। तो डैड इज फाइन, अ लिटिल बेटर देन बिफोर, ही इज आउट ऑफ ICU ऑन हिज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एंड गुरुजी ने वो भी ब्लेसिंग्स करी। बहुत पेनफुल टाइम था मेरे लिए, मिल भी नहीं पाती थी ज़्यादा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। और पेरेंट्स तो बच्चों के लिए तो पेरेंट्स तो सब कुछ है, उनकी पूरी दुनिया है, तो वो एक ऑब्वियस एक ऐसा रिलेशन है। और बीइंग अ डॉटर, या यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, एंड देन बस गुरुजी को अरदास उन दोनों को आप भी देखो। और वो भी बहुत पेनफुल टाइम था, तब भी गुरुजी ने संभाला, गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी। गुरुजी ने हर पल कहना मुझे रोती हुई नहीं अच्छी लगती, तू मैनू हंसती हुई अच्छी लगती है, तू जब रोंदी है तो मैं भी रोंदा, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो गुरुजी ने तब भी संभाला मुझे। गुरुजी ने कहा आगे बढ़, आगे बढ़ो, पीछे का सब भूल जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। गुरुजी के मैसेजेस ने इतनी हिम्मत दी, खड़ा किया उस टाइम में भी। गुरुजी पल पल तुझे संभाले, मन क्यों तू चिंता करे। बस गुरुपा ने चिंतन में रंग दिया और संभाला। मेरा बहुत मन था कि मेरा अंदर से बहुत मन करता था कि मैं गुरुद्वारे जाऊं। अंदर से मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी आप मुझे गुरुद्वारे कब बुलाओगे? गुरुजी मुझे गुरुद्वारे जाना नहीं आता, मुझे आप मुझे मेरे को लेके चलो, मुझे बुलाओ, मुझे आप ब्लेस करो, मुझे नानक प्याओ। गुरुजी ने ब्लेस किया, नानक प्याओ। गुरुद्वारे में मैं गई एक फ्रेंड के थ्रू, वो मेरी सिक फ्रेंड थी, एंड देन आई टोल्ड हर एंड कनेक्टेड एंड वेंट देयर। और फिर मुझे वहाँ पे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स मिली। फिर मुझे बंगला साहिब गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी हर एक अरदास आपकी पूरी करते हैं, आप सच्चे मन से जो भी गुरुपा से मांगो, गुरुपा हर एक की सुनते हैं। और जिस फ्रेंड के थ्रू मैं गई, उनकी सोसाइटी में गुरुद्वारा था, और मेरा बहुत देर से इच्छा थी कि गुरुजी आप मुझे चौर साहिब की सेवा दोगे। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं देखती थी ना, सब चौर साहिब की सेवा करते थे। मुझे था कि पता नहीं वी आर नॉट प्योर एट ऑल, एंड इट इज़ लाइक कैन आई टच इट और नॉट। सो वहाँ पे जब मैं गुरुद्वारे में गई, वहाँ पे सेवादार आंटी थी। आंटी ने बोला आप चौर साहिब की सेवा करोगे? तो उन्होंने मेरी गुरुजी के साथ चौर साहिब की सेवा करते हुए मेरी सेल्फी ली, मेरी फोटोग्राफ ली, एंड आई वाज सो हैप्पी, सो थ्रिल, सो ब्लेस्ड। और वो इतना सुंदर दिन था, नए साल की नई शुरुआत थी। और गुरुजी ने वो भी मेरी अरदास सुनी, और गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा। एंड आई रियली ब्लेस्ड इन माय लोटस, इन द लोटस फीट ऑफ माय गुरुजी। और आज परसों एक मैसेज आया था गुरुजी मैं दिन रात सांस सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। दिन रात मेरी हर सांस में गुरुजी ही गुरुजी हैं। तो इसी रिगार्डिंग मैंने एक जो संगत आंटी जी उनको मैसेज किया कि प्लीज़ आप मुझे जो लास्ट में स्टेटमेंट है ना कि दूसरों की जय से पहले जो कि वो आज भी ब्लेस कर रहे हैं, तो आंटी का रिप्लाई आया बेटा बहुत मुझे नहीं उठाते। आंटी अपना टाइम लीजिए, मुझे सुला देते हैं। जिस दिन मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मेरा अमृत वेला रह गया, कल एक और क्वेश्चन कभी कभी महाराज से पूछा, तब भी मैं तो फिर उठ उन जाती दोनों का ही क्वेश्चन का उठा आंसर देती थी। आज गुरुजी ने इस मैसेज मैंने को उठा दे दिया, दिया, लेकिन मुझे कई बार नींद आ जाती है। डिवाइन ग्रेस ग्रुप में भी है, गुरुजी और गुरुजी ये प्यार ही है जो मैं महसूस करती हूँ अपने गुरुजी का। एंड ही इज with all of us around each of us, and he is blessing and hearing each one's ardas. Love you Guruji, thank you Guruji, please keep holding my hand and keep showering your blessings. खुद पे एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। You always need
you बोला and कि उस रोड पे दूसरों को ठीक करने से, इतने प्यारे से दूसरों को करेक्ट करने से ज़्यादा हमें खुद पे करेक्शन का ध्यान गुरुजी देना अपनी चाहिए। प्रेजेंस अपने दूसरों बच्चों को को उनकी समझाने से ज़्यादा सहूलियत और हमें पहले उनकी खुद इच्छाओं को उस डिसिप्लिन वे में लाना चाहिए कि हम खुद एलिजिबल हो उस That's पर्टिकुलर what I वर्क को feel. करने के लिए जो हम दूसरों से कह And रहे he हैं kept it so simple. There are no rituals. सो थैंक यू It's गुरु all महाराज जी so समझाने के लिए। simple और that जो you कल have का one-to-one क्वेश्चन था वो direct ये था कि connection कल मैं with काफ़ी टाइम बाद Guruji एक अपने and स्कूल he टीचर listens से to मिली all and each थी and और everyone's उनको prayer. मैंने जैसे रिगार्ड्स दिए भाई अपने गुरु को नमस्ते बल जाएंगे। तो जो मुझे बैक टू गुरुजी, बैक रेसिप्रोकेटेड एनर्जी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अपने चरणों में जोड़ने का। सो एंड आई सांस रिमाइंड सांस की सिमरो रिकॉर्ड गोविंद की कुछ टाइम पहले मेरे एक Thank you, गुरुजी। रिलेटिव के रिलेटिव और इंटरनेशनल लेवल पे संगत जी बहुत he is a सारे player, सत्संग है, तो बहुत उनको भी सत्संग मैंने है। ऐसे ही नमस्ते बोला था, उनसे भी मुझे शिव कुछ पुराण खास एनर्जी रीडिंग नहीं और मिली। शिव पुराण तो में फिर मेरे गुरुजी को मैंने ने याद किया कि हम शिव अपने स्कूल पुराण में जो भी प्रिंसिपल होते हैं या सिखाई, फिर शिव जो पुराण बहुत ज़्यादा पढ़ने का महत्व डिसिप्लिन होते बताया हैं गुरुजी और ने। हमेशा गिविंग नेचर के होते हैं, उनसे अगर मैं ऑटोग्राफी अगर नमस्ते बोलूँ तो उनकी जो बैक टू बैक रेसिप्रोकेटेड एनर्जी से आती है कनेक्ट दैट इज सो पावरफुल, पॉजिटिव गुरुजी एंड से मैं बार बार कहती थी सो गुरुजी दिस इज व्हाट आई रियलाइज द प्लीज मुझे कोई डिफरेंस सेवा बिटवीन बख्शो। पीपल गुरुजी ने जो डोमिनेंटली फोकस्ड होते गुरुजी ने हैं, डोमिनेटली वो अरदास डायरेक्टेड भी होते कबूल हैं। करी। गुरुजी ने वो सेवा भी दो मुझे तरह के लोग बख्शी जो फेसबुक गिविंग पेज नेचर में पे, होते हैं, जो हमेशा कल्याण मैंने चाहते हैं कहा अपना गुरुजी भी आप संसार मुझे का भी, कुछ मतलब भी फोकस सेवा उनका उस दीजिए तरफ होता है, गुरुजी, पैसे आप मुझे कमाने की तरफ भी होता है और गुरुजी इस ने तरफ भी होता संगत है। के कुछ साथ लोग जो जोड़ा solely और पैसा जब मैं कमाने की तरफ बैंगलोर होते शिफ्ट हैं हो रही थी और मैंने कहा गुरुजी मैं तो सोशल किसी को नहीं एक्टिविटीज की तरफ फोकस जानती, कम मैं होता तो है। वहाँ कैसे And I ढूंढूंगी, got to कैसे know the answer to the same होगा सब thing. कुछ, कैसे आपके सत्संग होंगे। तो we गुरुजी don't he need has his to own take amazing ways action of on the connecting basis of coming into everyone। an agreement with fear, और जिसमें किसने गुरुजी लिखा का हुआ तो है। इतना Do not प्यारा come सा into agreement परिवार with है, fear, because इतना when ब्यूटीफुल हम दरबार है। गुरुजी ने हाई तो हो गए अब, क्योंकि हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी इनवर्क किया, हमने इनवर्क किया, हम जुड़े गुरुजी इनवर्क उनको फॉलो किया, अब हम स्पिरिचुअलिटी में ऊपर उठ गए, एलिवेट हो गए। तो दिस इज हाउ हमने जो पुरानी वाइब्रेशंस